Hare Krishna, everyone. हरे कृष्णा रश्मि जी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम. Hare Krishna, Dhanvat Pranam, Mohini Mataji. हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम. Pranam, Hare Krishna. Jnana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. I offer my humble obeisances unto my Guru Deva, unto Sri Gaurachandra and Sri Radha and Krishna. Sarva Shastrabdi Piyusha, Sarva Vedeka Satpala, Sarva Siddhanta Ratnadya, Sarva Lokaika Drikprada, Sarva Bhagavata Prana, Srimad Bhagavata Prabho, Kali Dhvanto Dutaditya, Sri Krishna Parivartita, O Srimad Bhagavatam, O nectar churned from the ocean of all the Vedic scriptures, O most prominent transcendental fruit of all the Vedas, O you who are enriched with the jewels of all spiritual philosophical conclusions, O you who grant spiritual vision to all the people of the world, O life breath of the Vaishnava devotees, O Lord, you're the sun which has arisen to dispel the darkness of the Kali Yuga. You're actually Krishna who has returned among us. परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुमे मदेक बंधो मत्संगिन मद्गुरो मद्महाधुना मद्निस्तारक मद्भाग्या मद आनंद नमोस्तुते असाधु साधु तादाइन अति नीचोचता करा ध्याना मुंज कदाचिन माम प्रेमना हितकंठयो सुरा. O Srimad Bhagavatam, I offer respectful obeisances unto you. By reading you, one attains transcendental bliss. For your syllables rain pure love of God upon the reader. You're always to be served by everyone, for you are an incarnation of Krishna. O Srimad Bhagavatam, O my only friend, O my companion, O my teacher, O my great wealth, O my deliverer, O my good fortune, O my bliss, I offer respectful obeisances unto you. O Srimad Bhagavatam, O giver of saintliness to the unsaintly, O uplifter of the very fallen, please do not ever leave me. Please become manifested upon my heart and my throat, accompanied by pure love of Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiret Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatit-tuma Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Govindaya Namo Namaha. Hare Krishna. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हमने 13 पढ़ लिया था. 13 नहीं पढ़ा. 13 नहीं पढ़ा था मैं. Okay. Okay. Please repeat. Tanna Shushukshamananam तन्ना सुष्टु समानानां Arhasya Anganu Varnitum अर्थस्य अंगानुवर्णितं Yasyavtaro Bhutanam यशावतारे भूतानां Shemaya cha Bhavaya cha. क्षेमाय च भवाय च that those now unto us सुष्टु samanam samanam those who are endeavoring for Arasi ought to do it. Anga O Sutta Goswami. Anu Vartina
to explain by following in the footsteps of previous acharyas. Yashasya, whose Avtaraha, incarnation. Bhutanam, of the living beings. Shemaya, for good. Cha, and. Bhavaya, upliftment. Cha, and. The translation and purport is given by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai Ho. Translation. O Suta Goswami, we are eager to learn about the personality of Godhead and his incarnations. Please explain to us those teachings imparted by the previous masters, that is Acharyas, for one is uplifted both by speaking them and by hearing them. Yeah. So हमने देखा जैसे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो सारे साधु हैं, सेंट्स, सेजेस हेडेड बाय शौनका ऋषि, वो पूछ रहे हैं सुत गोस्वामी से, और वो बहुत ईगर हैं, आतुर हैं, और वो जैसे लास्ट श्लोक में पढ़ा था, उन्होंने बोला भद्रम ते, बी ऑल ऑस्पिशियसनेस टू यू, you immediately you must start telling us about the supreme personality of Godhead and why he comes. So so you can see that here again it is explained that it is shown that how eager we should be to hear Bhagavatam, है ना. अगर हमें भी उन्हीं सेजेस की तरह इम्बाइब करना है भागवतम को, हमें भी उतना ही ईगर होना चाहिए. दैट इज जैसे आपने सुना होगा कि स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने के लिए या भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए तत्र लौल्यम एकम अपि मूल्यम, केवल हमें लौल्यम चाहिए, लालच चाहिए, टू बी एबल टू gather, to get that knowledge, to be able to practice this path of bhakti. So this eagerness is specified here, and also it is explained that one is uplifted by speaking them and by hearing them. तो जो वक्ता है, जो स्पीकर है, उसको भी बेनिफिट मिल रहा है, और जो सुन रहा है उसको भी बेनिफिट मिल रहा है. Okay. And then it is also mentioned that it is जैसे प्रीवियस आचार्य ने बताया वैसे ही रिपीट करेंगे तो ये बेनिफिट आएगा, है ना. सो दिस मस्ट बी टेकन, जैसे श्रीमद् भागवतम किसी से भी नहीं सुनना है ना. जिसने प्रीवियस आचार्य से सीखा है, जो बोनाफाइड गुरु परंपरा में आ रहा है, उसी से हम सीख सकते हैं. प्लीज कंटिन्यू रीडिंग. Purport. The conditions for hearing the transcendental message of the absolute truth are set forth herein. The first condition is that the audience must be very sincere and eager to hear, and the speaker must be in the line of disciplic succession from the recognized Acharya. The transcendental message of the Absolute is not understandable by those who are materially absorbed. Under the direction of bona fide spiritual master, one becomes gradually purified. Therefore, one must be in the chain of disciplic succession and learn the spiritual art of submissive hearing. In the case of Suta Goswami and the sages of Naimisharanya, all those conditions are fulfilled because Srila Suta Goswami is in line of Srila Vyasadeva. And the sages of Naimisharanya are those sincere souls who are anxious to learn the truth. Thus the transcendental topics of Lord Sri Krishna's superhuman activities, his incarnation, his birth, appearance or disappearance, his forms, his name, and so on are all easily understandable because of all requirements are fulfilled. Such discourses help all men on the path of spiritual realization. तो श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो वर्स है, इस श्लोक में सारी कंडीशंस बताई गई हैं कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करनी है ना, उसको हमें कहाँ से लेना है और हमारा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन प्रभुपाद इज सेइंग
दिस ईगरनेस एंड सिंसियरिटी टू हियर, है ना। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हाँ, तो परिप्रश्नेन, प्रश्न का यही अर्थ है कि we become eager to hear. So here, like here, the sages are asking so many questions of Suta Goswami. Similarly, we should have that eagerness to hear, and then sincerity, submissiveness, all that is very important for us to be. हमें अगर समझ में ये जो टॉपिक्स हैं ट्रांसेंडेंटल हैं, और अगर ये टॉपिक्स अगर समझ में, अगर आप चाहते हैं कि हमें समझ में आए, तो हमें हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए। और साथ के साथ जो वक्ता है उसमें क्या गुण होने चाहिए, वो एक बोनाफाइड परंपरा से आना चाहिए, है ना। तो अगर वक्ता बोनाफाइड है और हमारे अंदर सिंसियरिटी है, सबमिसिवनेस है, ईगरनेस है, तब हम अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेट कर सकते हैं। प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि जो भौतिकता में एब्जॉर्ब्ड है उसको समझ में नहीं आने वाला ये, क्योंकि उसके अंदर ये ईगरनेस टू हियर नहीं होगी, है ना। आप देखो, so and also bona fide parampara means that one should take shelter of a bona fide spiritual master, है ना। तो परंपरा में जो गुरु आते हैं हमें उनसे दीक्षा लेनी चाहिए और उनके इंस्ट्रक्शंस के अंडर हम शुद्ध हो सकते हैं धीरे धीरे। So Prabhupada in concluding he's saying must be in the chain of disciplic succession. तो गुरु और शिष्य की परंपरा से जुड़ना चाहिए हमको दीक्षा के प्रोसेस के द्वारा। हाँ, और हमें हमारे अंदर we should learn the spiritual art of submissive hearing so beautifully. Prabhupada's words are so beautiful. So this art of submissive hearing, it's a spiritual art, Prabhupada is saying, है ना। क्योंकि इसमें हम क्या चाहते हैं, हम कोई ऐसा मंडेन अपना फायदा नहीं चाहते, है ना। जैसे स्कूल्स में हम जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, पर अल्टीमेट क्या डिजायर होता है कि हम पढ़ लिख के कहीं नौकरी करेंगे, फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे उस पैसे से जो मिलेगा। बट हियर द गोल इज स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन, अपने आप को आत्म साक्षात्कार के पथ पे डालना है। तो ये जो स्पिरिचुअल आर्ट ऑफ सबमिसिव हियरिंग है, ये हमें सीखनी होगी, हाँ, और गुरु परंपरा से जुड़ना होगा। और यहाँ पर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। सुत गोस्वामी परंपरा से आ रहे हैं और उन्होंने डायरेक्टली शुकदेव गोस्वामी से भागवतम सुनी है, और एंड ये सारे जो साधु हैं बहुत सिंसियर हैं, दे हैव सिंसियरिटी, दे आर ईगर टू हियर एंड दे आर सबमिसिव ऑल्सो। तो तीनों गुण हैं, है ना, इन सब के अंदर। तो हमारे अंदर भी ये तीन क्वालिटीज होंगी, और हम एक बोनाफाइड गुरु से जुड़कर उससे समझने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या हुआ? हिमांशी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। That's the transcendental topics. So ओ कृष्णा, प्लीज आप सब लोग म्यूट रखिए। सो इस प्रकार से अभी हम देखेंगे कि जो सुत गोस्वामी बताने वाले हैं कृष्णा के बारे में टॉपिक्स, वो हम समझ पाएंगे अगर हम अगर ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गए। आई होप यू रिटन दीज डाउन। सम ऑफ दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि प्री रिक्विजिट क्या है भागवतम को समझने के लिए या स्पिरिचुअल नॉलेज को समझने के लिए। सो I hope you're making some notes whenever important points are there. Okay, next श्लोका हम पढ़ते हैं। ये श्लोका बहुत ही स्वीट है, छोटा सा श्लोका है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। It is very very powerful. Okay, श्लोका number 14. So आपन्ना संस्कृतिम घोराम, आपन्ना संस्कृति घोराम, यन्नामा विवशो गृणन्, यन्नामा विविशो घृणम्, ततः सद्यो विमुच्येत, ततः सत्यो विमुच्येत, यद् बिभेति स्वयं भयम्,
Yadvibheti swayam bhayam. Apannaha, being entangled. Samsritim, in the hurdle of birth and death. Ghora, too complicated. Yet what? Nam, the absolute name. Vivasha, unconsciously. Granan, chanting. Tataha, from that. Sadai, at once. Vinucheta, gets freedom. Yet that which. Vibheti, fears. Swaya, personally. Bhaya, fear itself. The translation and purports are given by Srila Prabhupada, Prabhupada Ki Jai. Living beings who are entangled in the complicated meshes of birth and death can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Krishna, which is feared by fear personified. You may continue reading. Purport. Vasudev, or Lord Krishna, the absolute personality of Godhead, is the supreme controller of everything. There is no one in creation who is afraid of the rage of the Almighty, who is not afraid of the rage of the Almighty. Great asuras like Ravan, Hiranyakashipu, Kans, and others who were very powerful living entities were all killed by the personality of Godhead. And the Almighty Vasudeva had empowered his name with the powers of his personal self. Everything is related to him, and everything has its identity in him. It is stated herein that the name of Krishna is feared even by fear personified. This indicates that the name of Krishna is non-different from Krishna. Therefore, the name of Krishna is as powerful as Lord Krishna himself. There is no difference at all. Anyone, therefore, can take advantage of the holy names of Lord Shri Krishna, even in the midst of greatest dangers. The transcendental name of Krishna, even though uttered unconsciously or by force of circumstances, can help one obtain freedom from the hurdle of birth and death. Yes. Okay, so this is so beautiful. तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? आपन्ना संस्कृतिम घोराम. So Prabhupada is translating. He's saying, living beings who are entangled in the complicated meshes of birth and death. What is a mesh? The Jal. the screen with crosses, you know, the one which we put for warding off the cows and everything. जाली जाली. जाली में जाल जो होता है फिशेस को पकड़ने का. हाँ, mesh is a very intricate, है ना, बहुत उसमें बहुत माइन्यूट जगह होती है निकलने की, है ना. मतलब कोई फंस जाए तो बस फंस जाए उसमें, है ना. तो हम भी इसी mesh में हैं, जानते नहीं, है ना, भूल जाते हैं. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम. तो हम बार बार, we don't want to die but we die, we don't want to take birth but we take birth, and this continues. So what is being stated here? Apanna samsritim ghoram. Ghoram matlab very complicated. Samsritim, in the hurdle of birth and death. So Prabhupada is translating. He's saying we are entangled in the complicated meshes of birth and death. And seems like हम निकल ही नहीं सकते, इतना बुरी तरीके से entangle हो चुके हैं. But we can be freed immediately, है ना, देर भी नहीं लगेगी, immediately, है ना, by even unconsciously chanting the holy name of Krishna. So यन नाम विवशो गृणन, है ना, ऐसे नाम को लेकर चाहे हमने अनकॉन्शियसली उसको चैंट किया और हम we can be freed from this cycle of birth and death. We can get liberation. Imagine, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी अगर हम अनकॉन्शियसली भी कृष्ण बोल देंगे एक बार. तो क्या इस श्लोक में
अनकॉन्शियस चैंटिंग प्रमोट की जा रही है? Is it? What do you think? Juhi, No. what do you think? ग्लोरीफाई किया जा रहा है। No, Mataji, Hare Krishna. Krishna. This is for those who don't understand and they can do it unconsciously. But here, when we understand the implications, we need to do it with the right thought and right way. Yes, yes. So imagine somebody who is doing it unconsciously, उसको liberation मिल रहा है. लेकिन somebody who is doing it with love and devotion, like we all are trying to do, है ना? हम love और devotion से करने की कोशिश कर रहे हैं. Then what happens? Imagine, liberation से भी ज्यादा कुछ मिलेगा. Liberation से भी ज्यादा कुछ है क्या? भगवान के धाम जाएंगे। हाँ हाँ, correct, है ना? So and further it is written, यद बिभेति स्वयं भयम. अगर भय एक पर्सन है, जो कि है ना, तो स्वयं भय भी भगवान के नाम सुनते ही डर जाता है ना? तो जो भी आप सोच सकते हैं हमारी लाइफ में जो भी चीजें हैं जो हमें डराती हैं, जिनसे हमें एंजाइटी होती है, अगर भगवान का नाम हम चैंट कर रहे हैं इवन अनकॉन्शियसली भी, तो भी those things will be scared, you know, of so of Krishna's name. If we chant the holy name, these things will also be scared. So यहाँ पे Prabhupada is further explaining. So Prabhupada is explaining बड़े-बड़े राक्षस जो हैं, they were killed by Krishna as a person, you know. We know that Krishna, even when he was a baby, he killed Putana. He killed so many demons just by his bare hands, है ना? हाथों से ही मार दिया सबको. तो हम सोच सकते हैं कि व्यक्ति कितना पावरफुल है ना? फिर यहाँ पर Prabhupada is explaining कि his name is as powerful as Krishna. So imagine, Chaitanya Mahaprabhu also says, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति. तो हर नाम में भगवान ने अपनी पर्सनल शक्ति डाली हुई है. तो वो जो नाम इतनी बड़े बड़े डीमंस का नाश कर सकता था, और सब कुछ उनकी एनर्जी पे ही चल रहा है. एवरीथिंग, the entire cosmos, set of universes, everything, that energy is invested in his name. नाम के अंदर वही पावर है, वही शक्ति है. So हमें अगर हम बहुत ही जो भी दुर्गम सिचुएशन में भी हैं, बहुत ही कठिनाई में भी हैं, डेंजरस सिचुएशन में भी हैं, we must chant the holy names of Krishna. So and we can easily obtain. So this is very easy to obtain freedom from the hurdle of birth and death. But what we want, like Chanchal Aunty said, that we want is love of Krishna. We want to go back to Krishna. So we chant the name with love and devotion, with that desire that we want to serve Krishna. तो हम आचार्यों को फॉलो करते हैं. आचार्यज ने हमें बताया कि हमें मिनिमम 16 राउंड्स करने चाहिए. ज्यादा अनलिमिटेड कर सकते हैं, नाम का कोई वो नहीं है, अपर कैप नहीं है उसके ऊपर. So if we chant the holy name as prescribed by the acharyas, minimum 16 rounds, and we follow the regulative principle, then certainly we will be able to achieve what we want to achieve, because the name of Krishna is as powerful as Krishna. It can bestow what you want, and it bestows all fearlessness. So भक्त लोग इस श्लोक को याद भी कर लेते हैं. So बहुत सुंदर श्लोक है. आप लोग चाहें तो आप भी याद कर सकते हैं, फिर आप क्लास में सुना भी सकते हैं. So very beautiful shloka. I'll say it again. Apanna samsritim ghoram yad nama vivasho grinan tatah sadyo vimuccheta yad vibheti swayam bhayam. तो अभी हम 15, 16, 17 जो पढ़ेंगे वो कनेक्टेड हैं, और उसके बाद सुध गोस्वामी आंसर करना शुरू करेंगे. So this is just to glorify glorify this knowledge. Okay,
यत् पाद संश्रया सूता. संगीता Yat yat pad sayam shrayasut मुनिया प्रसम मुनया प्रशमायनः prashnayama सद्य पुनन्ति उपस्पृष्टः punatyu pushta स्वर्धुन्यापो अनुसेवया. varnyapo anusevaya. Yat कर लेते हैं. pad lotus feet. Samharshai, those who have taken shelter of. Sutta, O Sutta Goswami. Parshamainaha, absorbed in devotion of Supreme. Sadhya, at once. Punananti, sanctified. Swardhuni of the sacred angels. Apaha, water. Anusevaya, bringing into us. Translation. O Sutta, those great sages who have completely taken shelter of the lotus feet of Lord can at once sanctify those who come in touch with them, whereas the waters of the Ganges can sanctify only after prolonged use. Purport. Pure devotees of the Lord are more powerful than the waters of the sacred river Ganges. One can derive spiritual benefit out of prolonged use of the Ganges water, but one can be sanctified at once by the mercy of pure devotee of the Lord. In Bhagavad Gita, it is said that any person, regardless of birth of Shudra, woman, or merchant, can take shelter of the lotus feet of the Lord, and by doing so, can return to Godhead. To take shelter of the lotus feet of the Lord means to take shelter of the pure devotees. The pure devotees whose only business is serving are honored by the name of Prabhupada and Vishnupad, which indicates such devotees to be representatives of lotus feet of the Lord. Anyone, therefore, who takes shelter of the lotus feet of pure devotee by accepting the pure devotee as a spiritual master can be at once purified. Such devotees of the Lord are honored equally with the Lord because they are engaged in the most confidential service of the Lord. For they deliver out of the material world the fallen souls whom the Lord wants to return home, back to the Godhead. Such pure devotees are better known as wise lords according to the revealed scriptures. The sincere disciple of the pure devotee considers the spiritual master equal to the Lord, but always considers himself to be humble servant of the Lord. This is pure devotional path. Yeah. So, so these sages are saying that somebody who's taken shelter of the lotus feet of the Lord can. So Krishna is so powerful कि कृष्ण का नाम लेने से जो हमारे अंदर हमें जिन चीजों का भय रहता है वो भय भाग जाता है. Even the fear as a person is fearful of the name of Krishna. Further, he is saying that if we take shelter of the lotus feet of the Lord, one can be immediately purified. Purified of what? Purified of our sins. तो जैसे हमने देखा ये जो साधु हैं ये कलयुग के शुरू होने से थोड़ा पहले ये सब बैठे हैं नैमिषारण्य में, जहाँ पर which is a very sanctified pure place, वहां पर वो तपस्या कर रहे हैं अपने लिए नहीं, हमारे लिए. आज हम कुछ चैंटिंग कर पा रहे हैं, थोड़ी पाइटी बची है इस कलयुग में, वो उन लोगों की वजह से ही है कि हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन हैव दैट. तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो भगवान के चरणों के शरणागत हो जाता है
वो तुरंत शुद्ध हो जाता है, एट वंस सैंक्टिफाई। जबकि गंगा जल जो है, गंगा में जाके स्नान करते हैं हम, तो बहुत समय तक जो व्यक्ति गंगा के तट पर रहता है, बहुत समय तक उसमें स्नान करता रहता है, तब जाके उसका हृदय जो है वो शुद्ध होता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि टेकिंग शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड क्या है। इफ यू सी, obviously we cannot approach Krishna directly. Krishna does not have love for Krishna. Who has love for Krishna? His devotees, है ना? So only his devotees can give love for Krishna. So we have many beautiful Vaishnav bhajans also, जिसमें हम कृपा याचना करते हैं शुद्ध भक्तों से कि वो हमें भगवान का प्रेम दे, भगवान के धाम में जाने के लिए हमें क्वालिफिकेशन दे। तो so taking shelter of Krishna means taking shelter of a pure devotee of Krishna. And anyone can do that. Nobody is barred from that. So to take shelter of the lotus feet of the Lord means to take shelter of the pure devotees. The pure devotees whose only business is serving are honored by the names Prabhupada and Vishnupad. प्रभुपाद ने जब ये फर्स्ट कैंटो लिखा था तब वो वृंदावन में रहते थे, और तब उन्हें प्रभुपाद नहीं कहा जाता था, उन्हें एक सी भक्ति वेदांत स्वामी कहा जाता था। और कुछ साल जब वो न्यूयॉर्क में भी थे, पहले कुछ साल सब लोग उनको स्वामी जी या स्वामी बोलते थे। प्रभुपाद नाम बाद में उनके जो सीनियर डिवोटीज थे, उन्होंने जब ये पढ़ा तो नाम उनसे पूछा कि हम आपको प्रभुपाद बुला सकते हैं इंस्टेड ऑफ कॉलिंग यू स्वामी जी। सो प्रभुपाद सेड यस यू कुड डू दैट। तो तब से नाम प्रभुपाद, तब से एड्रेस करना शुरू हुए प्रभुपाद को प्रभुपाद। सो प्रभुपाद, अगर इसकी संधि विच्छेद करें तो प्रभु मतलब भगवान, पाद मतलब चरण। तो प्रभु के चरणों में जो रहता है उसको प्रभुपाद कहते हैं, है ना? या विष्णुपाद, विष्णु भी भगवान का नाम है, और विष्णु के चरणों में जो रहता है उसको विष्णुपाद कहते हैं। तो ये जो इनको प्रभुपाद या विष्णुपाद कहते हैं, which means what? They are the representatives of the lotus feet of the Lord. If you see, Prabhupada is writing so beautifully. So taking shelter of the lotus feet, जहां जहां पर लिखा होता है उसका यही अर्थ होता है कि हम भगवान के शुद्ध भक्त जो कि इनके चरणों में स्थित हैं, उनके शरण में जाएं। So and we can be at once purified, immediate purification होगा। आपने सुना होगा ये लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, है ना? तो जो साधु डिसिप्लिक सक्सेशन में आ रहा है और वो पूर्ण शरणागत है कृष्ण को, और उसने अपना जीवन केवल और केवल कृष्ण के लिए डेडिकेट किया है, उसके पास अगर हम लौ बोलते हैं 1/11 of a second, I hope I'm correct. I keep forgetting this figure. So please correct me if you all know. 1/11 of a second is what I know is law, है ना? और लॉ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। अगर हम 1/11 of second भी एक साधु के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं या दर्शन उसका संग ले लेते हैं, तो we are purified. And such devotees of the Lord are honored equally with the Lord. Because they engage in the most confidential services of the Lord. So if you can see, भगवान का क्या पर्पस है? भगवान बार बार क्यों आते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में? Because he wants us to get delivered from this miserable material world. And ये representatives को भगवान स्वयं भेजते हैं, जिससे कि हम वो सब सीख सकें जो भगवान हमें सिखाना है। जैसे भगवत गीता, अभी प्रभुपाद अपने परपोर्ट से भगवत गीता को इतना आसान नहीं बनाते तो इतने सारे लोग भक्त थोड़ी ना बन पाते। तो भगवत गीता को एज इट इज और लूसिड फॉर्म में प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया, जिससे कि अनेक कंट्रीज में अनेक लोग भक्त बन रहे हैं। सो एंड दीज डिवोटीज, जैसे हम पढ़ते हैं, हम मंगल आरती गाते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, तो सारे शास्त्र क्या कह रहे हैं कि आप साक्षात हरि हो। ऑल्दो ही गुरु अपने आप को भगवान नहीं मानते हैं, है ना? वो अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं, बट हम उनको ऐसे ही रिस्पेक्ट देते हैं जैसे हम भगवान को रिस्पेक्ट देते हैं।
है ना। जैसे कोई एक क्रूड एग्जांपल है, प्रभुपाद एक्चुअली यूज्ड टू मेनी टाइम्स गिव दिस एग्जांपल, कि जैसे इनकम टैक्स ऑफिस है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट, बट जब वो इनकम टैक्स ऑफिसर आता है हमारे पास, सो वी गिव ऑल दैट रिस्पेक्ट टू दैट income tax person because he is representing the government. So similarly, somebody who's representing Krishna, you know, is supposed to be given the same respect as we would give to Krishna. So बहुत सुंदर शब्द यूज किया प्रभुपाद ने, वाइस लॉर्ड्स, है ना। तो भगवान को लॉर्ड बोलते हैं, ये वाइस लॉर्ड्स हैं। और आप देखें ये एक्चुअली जितने भी सब जैसे रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, हमारे जो गोस्वामी रहे हैं, छठ गोस्वामी रहे हैं, वो एक्चुअली भगवान के बहुत ही क्लोज पार्षद हैं, है ना। जैसे रूप गोस्वामी, हमको रूपनुगा बोला जाता है, रूप गोस्वामी जो है वो अष्ट सखी आप जानते हैं ना, तो ये 9th है। रूप गोस्वामी एक्चुअली रूप मंजरी। प्रभुपाद ने कई बार अपने डिसाइपल्स के साथ, सम डिसाइपल्स हैव शेयर्ड लाइक दैट, श्रुतकीर्ति प्रभु जैसे शेयर करते हैं कि प्रभुपाद के एक बार वो मसाज कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने सनलाइट को देखा और बोला कि माय कॉम्प्लेक्शन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लाइक दैट गोल्डन सनलाइट। सो ये पार्षद हैं, भगवान के बहुत निकट पार्षद हैं, और ये आए हैं हमको वापस ले जाने के लिए। So how dear they are to Krishna, that they are भगवान का जो मैसेज है, भगवान का जो डिजायर है, उसको फुलफिल करने के लिए ये केवल हमारे लिए आए हैं। तो how much respect we should give them and how much indebted we should feel towards them. Like when the initiation happens, जब दीक्षा होती है, तो गुरु अपने डिसाइपल के सारे पाप अपने ऊपर ले लेता है, और ये गारंटी दे देता है कि आई एम गोइंग टू टेक दिस पर्सन बैक टू कृष्णा। एंड यू नो व्हाट हैपेंस, अगर वो डिसाइपल किसी भी कारणवश चैंटिंग नहीं करता या जो भी उसने कुछ गलती कर दी और वो नहीं जा पाया भगवान के धाम, तो गुरु को वापस लौट के आना पड़ता है, दोबारा जन्म लेना पड़ता है इस मिजरेबल मटेरियल वर्ल्ड में। सो दे टेक सो मच रिस्क, you know, Prabhupada took so much risk, he initiated so many people, and so how indebted we should feel towards them, how grateful we should be towards them. But as we see, प्रभुपाद का भी अगर आप देखें, जब भी प्रभुपाद को एक बार प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, तो 4 वर्णाश्रम के बारे में बता रहे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा, तो आप तो इन चारों से ऊपर ही होंगे, किसी ने चैलेंजिंग वे में उनसे पूछा, तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि नहीं, मैं इन चारों से सबसे नीचे हूँ, शूद्र से भी नीचे हूँ, क्योंकि मैं सर्वेंट हूँ सबका, इन चारों। और प्रभुपाद वाज एक्चुअली सर्विंग। इमेजिन वो जो बावरी में लोग थे, हिपीज, जो एडिक्टेड थे, सारी प्रिंसिपल्स को तोड़ते थे, उनकी सेवा कर रहे थे प्रभुपाद, उनके लिए प्रसाद बनाते, उनको कीर्तन पे बुलाते, इवन जब वो खा के चले जाते तो उनके जूठे बर्तन भी मांजते प्रभुपाद। इतना स्ट्रगल किया प्रभुपाद ने। सो प्रभुपाद केवल बोल ही नहीं रहे थे, he actually did all that, you know. So how grateful we should be to the to our acharyas, to our guru and Srila Prabhupada. We should see them as good as God. Yeah. कि थोड़ा आज समय ज्यादा हो गया। Oh, I didn't realize it's 12:55. I'm so sorry. Sorry, I didn't realize it. Okay. So आपके कोई questions हैं या कुछ comments हैं तो वो ले लेते हैं और हम फिर बंद करते हैं इसको। Yes, विमला माता जी, please. आवाज आ रही है? Yes. ठीक है। ये क्या, जैसे सब बताया, सब पढ़ा हमने, तो कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हम चाहते भी नहीं दोबारा बर्थ, लेकिन जो अंदर हमारे शरीर में इतने कलमश हैं और इतने कलेश हैं, वो क्या हमें दोबारा नहीं भेजेंगे? वो तो जरूर कैसे कितना हम कवर कर लेंगे जो हमारी लाइफ के स्टेप पे हैं। माता जी बहुत सही आपने बोला। प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि हमारा जो हृदय है वो कोयले के समान है, जितना धोएंगे उतनी काला की निकल रही है। सो माता जी, हम अपने एंडेवर पर या अपनी मेहनत पर डिपेंड नहीं कर सकते।
है ना, कि हम अपनी मेहनत से अपने फॉलो करके हम भगवान के धाम चले जाएंगे। हम ये होप कर सकते हैं कि हम अपनी सिंसियर मेहनत से भगवान के हृदय में कृपा जगा लेंगे। भगवान तो भक्त वत्सल है ना। सो भगवान के हृदय में अगर हमारे लिए हमने जेन्युइनली ट्राई किया, सिंसियरली अगर हम ट्राई करेंगे, तो भगवान कृपावश हमें ले जाएंगे, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी एफर्ट से जा सकते हैं भी। हमारा एफर्ट तो माता जी बहुत टीनी है, बहुत छोटा है। भगवान की कृपा लेकिन बहुत बड़ी है। तो भगवान चाहे तो हमें ले जा सकते हैं ना। और अगर भगवान चाहते हैं कि हम कोई सेवा करें यहीं पर रुक के या थोड़ा और प्योरीफाई हो, वो भी भगवान के हाथ में है ना। एक्चुअली भगवान का ही डिजायर है। प्रभुपाद कहते थे अगर हम एक कदम उठाते हैं, भगवान 100 कदम उठाते हैं हमारी तरफ। तो भगवान का डिजायर ज्यादा स्ट्रांग है, भगवान को ज्यादा जल्दी है। पर अगर हम कंटेमिनेटेड स्टेट में जाएंगे वहां पर, तो then we will not be able to stay. So इसीलिए तो we depend on God's mercy, we depend on Krishna's mercy, we beg for, we take shelter of Radha Rani, we take shelter of Prabhupada. तो हमारे माता जी जीवन में टेस्ट भी बहुत आते हैं, है ना। फिर अगर हम चाहते हैं कि हम प्योरीफाई हो, तो टेस्ट आते हैं। टेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अटैचमेंट्स को तोड़ना चाहते हैं कृष्ण, भौतिक जगत से जो हमारे आसक्तियां हैं। तो वी शुड वेलकम दोस टेस्ट माता जी, है ना। एंड वी शुड प्रे टू कृष्णा, कृष्णा आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, प्लीज मुझे बताइए, है ना। सो माता जी इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, वी ट्राई आवर बेस्ट, है ना। बाकी वी डिपेंड ऑन कृष्णा's mercy. ये संगीता रश्मि, जैसे अभी हमने ये पढ़ा कि अगर थोड़ा सा भी नाम कोई गलती से भी ले लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। और फिर हम साइमल्टेनियसली ये भी कहते हैं कि कृष्ण लोक जाना आसान नहीं है, बहुत सालों की तपस्या लगती है, बहुत सालों का वो लगता है। तो जैसे उन्होंने नारायण नारायण कहा एंड ही वेंट टू, तो व्हाई इज दिस? he didn't go immediately. अजामिल की कथा बोल रही है ना आप। नारायण बोलने से तो गए नहीं थे। नारायण बोलने से वो उन्होंने जब यमदूतों, वो केवल नरक में जाने से बच गए थे, है ना, नारायण बोलने से। और फिर उन्होंने 6 साल तपस्या की थी हरिद्वार में, यानी हरे कृष्णा महामंत्र का जप किया था, नारायण नाम का जप किया था, उस समय की बात है, सतयुग की। तो फिर वो तब उसके बाद वही विष्णुदूत उन्हें लेने आए थे। So this, I just wanted to clarify it because many people have this, they don't have the right story with them. Ajamil did not go back home immediately. Ajamil stayed back. So, but your question is, निकल भी जाता है अगर नारायण नारायण भी निकल जाता है तो he is so merciful that he kind of accepts you. तो yes. और फिर ये भी कहते हैं हम कि बहुत सालों की भगवान की भक्ति के बाद we can go back to Godhead. तो दोनों में से क्या सही है? तो ये दोनों अलग अलग चीजें है ना। ये जो प्रॉमिस दिया गया श्रीमद् भागवतम में, वो मोक्ष का दिया गया है। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा, विच मीन्स आप जाके ब्रह्मलीन हो जाओगे, ब्रह्म ज्योति में चले जाओगे, ठीक है। कंस की तरह, शिशुपाल की तरह, जो अनेक राक्षस भी जाते हैं क्योंकि वो भगवान का स्मरण करते हैं। तो सो ये हमारा गोल नहीं है, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति इज नॉट अ परमानेंट डेस्टिनेशन। वी ऑल्सो वांट अ रिलेशनशिप विद कृष्णा। और ये जो भक्ति का प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं, वो कठिन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारी मैल जमा हुई है ना। हमारे जो संबंध है भगवान से, वो बहुत नीचे कहीं दबा हुआ है ना। तो उस संबंध को वापस लाने के लिए we need to purify ourselves completely. पर जन्मों जन्मों का इतना मैल चढ़ा हुआ है कि प्योरिफिकेशन बहुत ही कठिन लग रहा है। सो कठिन क्या है? प्योरिफिकेशन कठिन है क्योंकि मैं गंदा हूं, क्योंकि मैं चेंज नहीं होना चाहता। अगर भगवान चाहे तो हमें एक क्षण में शुद्ध कर दें, जिसका मतलब ये भी होगा कि हमारी जो आसक्तियां वो कट जाएंगी, है ना। पर आसक्ति को काटने में बहुत कष्ट होने वाला है हमको, है ना। यू एंड आई नो दिस, राइट।
कि जब हमारी लाइफ में जो ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जो हमको दुख दे रही हैं, हम उनको अभी भी छोड़ना नहीं चाहते। We don't see them as we want to be in the material world and make it happy here only, है ना? ये so we are so entangled in the meshes. So what a mess we have created for ourselves. So the thing is that so this needs purification to be able to rediscover our relationship with Krishna. So what is difficult is me. It's not Krishna. Krishna is not making it difficult. Rather, Krishna has come very mercifully as Chaitanya Mahaprabhu in this age, and he is freely giving love of Krishna. He's just saying, you chant the holy name and I will take you back. And he's Adoshadarshi. He's not even looking at our doshas. He's not looking at our, whatever anomalies, whatever dirt we have in our heart. So we take the mercy of Lord Chaitanya, Nityanand Prabhu ने जगाई मधाई को इसीलिए लिबरेट किया हमारे सामने कि जो ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्रह्म हत्या की थी, रेप्स किए थे, मर्डर्स किए थे, गाय मार के खाई थी, उनको मैंने कृपा दे दी। तो हम तो फिर भी ऐसे लगता है पिछले जन्मों में कुछ तो किया होगा, वैसे कलयुग तक आए हैं, पर कर सकते हैं। उनको देख के लगता है कि हम भी कर सकते हैं भक्ति, हम भी भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, है ना? लेकिन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु का शेल्टर लेने के बाद जगाई मदाई ने कभी कुछ बुरा कार्य नहीं किया, है ना? और उन्होंने भक्तों की सेवा की। इनफैक्ट मदाई को इतना रिग्रेट था कि वो पत्थर उठा उठा के लोग उन्हें पत्थर से मारते थे। मदाई को पत्थर से, जगाई मधाई ने जब घाट बनाया तो उनको पत्थर से मारते थे लोग, क्योंकि इतना अत्याचार किया था उन्होंने। तो वो पत्थर वापस उठा के उन लोगों को देते थे, कहते थे और मारो, हमें और मारो, क्योंकि हमने बहुत बुरा किया है तुम सब लोगों के साथ। तो that was their mood. They became very humble. So now we've got in touch with Chaitanya Mahaprabhu, Nityanand Prabhu, and their mercy we are chanting. By their mercy we are chanting the holy name. So we will not do what we have done in the past. We express our remorse for it. We regret what we have done, and we take up this process going forward. And we depend, like I told Vimla Mataji, we depend on the mercy of Krishna. He may take us back in this very lifetime, but we do our best. And how we do our best? By following the instructions of Srila Prabhupada as it is. Whatever he is saying, we do that as it is. No mental concoction. Right? Okay. Thank you. Preeti Mataji. Yeah, Hare Krishna. हरे कृष्णा रश्मि जी, बस मैं तो यही कह रही थी कि ये जो आपने आज 22 लॉर्ड्स के बारे में बताया, पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा। तो श्रील प्रभुपाद जी भी हमारे 22 लॉर्ड। Yes, of course. Yes. तो बहुत अच्छा लगा, Yes. पहली बार सुना था। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। Yes. संगीता। हरे कृष्ण माता जी, एक मैं पूछना चाहती। कहाँ हो आप? दिख तो रहनी हो। नहीं, मैं यहीं पे हूँ माता जी। मैं एक चीज पूछ रही थी कि कभी कभी हमारा विश्वास डोलता है, कि हमें इधर उधर से कोई बोलता है या कुछ है, उस समय हम अभी डोले नहीं हूँ मैं, पर मैं वही पूछ रही हूँ कि हम उसमें डोलने हैं कभी कुछ, वो थोड़ा सा मेरे लिए एक प्रॉब्लमेटिक है। आई जस्ट वांट टू क्लियर। वैसे कुछ नहीं है, पर ये क्वेश्चन अभी मेरे को लगा कि जैसे हमारा विश्वास क्यों डोलता है, मतलब हमारी भक्ति में तो कमी है, आई नो इट, हम पूरा वो नहीं कर रहे हैं उसको, लेकिन फिर भी हम कैसे उसको विश्वास को बिल्कुल अडिक्ट कर लें अपने। तो माता जी देखिए, इसका आंसर कृष्णा ने भगवत गीता में दिया। ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह मेरे मुक्ता भजते माम दृढ़ व्रता। मतलब डिटर्मिनेशन से वो कौन व्यक्ति है जो भक्ति कर पाता है, निर्द्वंद्व यानी कि डुअलिटी से उठ के, माने कि ये ठीक है कि नहीं है, इस पूर्ण विश्वास के साथ कौन कर पाता है? वो जिसके सारे पाप नष्ट हो गए, है ना। तो माता जी हमने जन्मों जन्मों बहुत पाप किए हैं, तभी तो कलयुग में आए हैं, है ना। तो हमें लेकिन अब जब ये भक्ति का प्रोसेस मिल गया है तो हमें पापों से बच के रहना पड़ेगा, है ना। तो एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि हम हरि नाम जो लें बहुत ध्यान पूर्वक लें, लव एंड डिवोशन के साथ लें, जिससे कि हमारे बताते हैं कि एक शुद्ध हरि नाम
शुद्धता से लिया गया हरि नाम हमारे अनेक अनेक पापों को नष्ट कर देता है ना। तो शुद्ध हरि नाम लेना चाहिए। और दूसरा जो जैसे 4 नियम जो बताए हैं, पर पुरुष संबंध नहीं, मीट ईटिंग नहीं, ये सब चीजें हमें ना पापों से बचा के रखती हैं। तो जो मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि हम साथ साथ पाप भी करते रहे और हम साथ साथ, मैं ये नहीं कह रही कि आप कर रही हैं कुछ ऐसा, पाप भी करते रहे और साथ साथ हम भक्ति प्रैक्टिस करें। इट कांट हैपन। इट्स लाइक लाइटिंग अ फायर एंड देन पोरिंग वाटर ऑन इट। तो दैट इज वन पॉइंट माता जी, ये प्रभुपाद ने ये भगवद गीता में एक्सप्लेन्ड है, तो मैंने आपको बताया दृढ़ वृत्त होने के लिए। और दूसरा माता जी, जैसे आप अपना जीवन भक्ति में जब आप नहीं थी वो देखिए, और जब आप भक्ति में आई तो देखिए। सो प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग इट। आपने पढ़ा होगा ना ये प्रोवर्ब, तो आप खुद ही देख लीजिए कि क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया, या आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें आई जो जीवन में आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी। कलयुग में अनफॉर्चुनेटली कली के फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, माया के फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। और जो कोई भी, मैं सभी लोगों को इनफैक्ट ये बात बताती हूँ कि ये दुर्ग है, किला है या जेल है, और हम सब कैदी हैं। और जब भी कोई कैदी इस दुर्ग से निकलने की कोशिश करता है या भागने की कोशिश करता है, तो उस पर निगरानी कड़ी हो जाती है, जैसे नॉर्मल जेल में भी होती है। और माया देवी अनेक अनेक टेस्ट देती है। तो माता जी, आप क्योंकि सिंसियर हैं, आप बहुत सुंदर कीर्तन भी करती हैं और आप भक्ति अच्छे से कर रही हैं, तो ये माया देवी का कोई ना कोई भेजा हुआ टेस्ट है आपको चेक करने के लिए। और क्योंकि जब आप भौतिक जगत से निकलने के लिए अपना रास्ता बढ़ाएंगी, तो जरूर माया देवी डेफिनेटली कुछ ना कुछ टेस्ट देगी, वो चेक करने के लिए whether you're eligible to take those steps, whether you're eligible to go back to Krishna. So maybe you've got a test, और अब आपको देखना है कि अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाओगे तो आप भगवान के धाम चले जाओगे, लेकिन अगर पास नहीं होगे तो फिर यहीं रह जाओगे। तो you can just evaluate it माता जी, and also speak with your counselor, जो भी आपके टीचर्स हैं आपकी क्लास के। हाँ जी, ठीक है जी, जरूर जी, थैंक यू पर्सनल लेवल, और सोनिया जी से भी बात कर सकते हो आप, है ना। ठीक है जी, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। संगीता Hare शर्मा, Krishna, everyone. Hari Bol Rashmi. हरि बोल। Thank you so much. Thank you. Sangeeta Sharma has a question. We'll just quickly take it and then. Sure. हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए। वैसे तो थोड़ा जवाब मिल गया है, बस मुझे ये पूछना था, जैसे पिछले श्लोकों में हम लोगों ने सुना था कि कलयुग में हम लोग तमोगुनी के अधीन रहेंगे, आलस्य जो लेजीनेस वगैरह होगा, और आज हम लोगों ने पढ़ा है कि मतलब सिंसियरिटी रहना चाहिए हम लोगों को, तो वो कैसे डेवलप करे और लेजीनेस को कैसे दूर भगाए। नॉलेज होता है, हम लोग को ज्ञान होता है, लेकिन हम लेजीनेस के मतलब आज अवॉइड, मतलब उसमें क्या बोलेंगे उसको, मतलब वो चलता है कि आलस लेजीनेस में आ जाते हैं हम लोग कि कर लेंगे, ये है हमको पता है कि करना है लेकिन कर लेंगे, तो वो सिंसियर कैसे हो ये चीज के लिए थोड़ा बताइए ना। हाँ जी, सिंसियरिटी या बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन है। इनफैक्ट अगर आप देखो, अगर जो बच्चे पढ़ाई नॉर्मल मंडेन एजुकेशन में भी होते हैं, अगर वो सिंसियर नहीं होते, सिंसियरिटी इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, अगर वो सिंसियर नहीं होते तो वो पढ़ भी नहीं सकते, दे कांट अचीव एनीथिंग। सिंसियरिटी इज लाइक अ प्री रिक्विजिट। तो हमें मटेरियल वर्ल्ड में तो बहुत सिंसियरिटी रहती है हमारी, है ना, कि हमें अपने हस्बैंड को, हमें अपने परिवार को देखना है, वी आर वेरी सिंसियर अबाउट इट। बट स्पिरिचुअल चीजों को लेके हम इतने सिंसियर नहीं हो पाते क्योंकि कन्विक्शन नहीं है अंदर से, है ना। हमें लगता है कि ये जो भौतिक जगत है यही सब कुछ है हमारा, है ना। तो माता जी, वो कन्विक्शन कैसे आएगा? शुद्ध भक्त के संग से आएगा। जैसा संग वैसा रंग, है ना। तो अगर हम शुद्ध भक्त का संग करेंगे, यानी जैसे प्रभुपाद के ग्रंथ हर रोज अध्ययन करेंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट है कम से कम 1 घंटा जरूर पढ़िए। आधा घंटा हम यहाँ पढ़ लेते हैं, आधा घंटा चाहे और पढ़ लीजिए आप, है ना। तो एवरी डे वी मस्ट रीड। हम शुद्ध भक्त यानी प्रभुपाद की वाणी का संग कर रहे हैं, तो हमारे
हमारे अंदर वो गुण आते जाएंगे जो प्रभुपाद ने एक आइडियल डिवोटी में बताए हैं, है ना, क्योंकि हम उनका संग कर रहे हैं। और क्लासेस आप अटेंड करती ही रहती हैं, बट हर रोज वी मस्ट डू सम सेल्फ रीडिंग। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो चैंटिंग ना केवल एक इमोशनल बेसिस, इमोशनल लेवल पे रह जाती है। ठीक है, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डू सेल्फ रीडिंग एवरी डे। प्रभुपाद ने 2 घंटा रीडिंग के लिए बोला, आप 2 घंटा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, लेकिन प्लीज जरूर करिए, है ना। ठीक है। और लेजीनेस का मतलब कुछ और भी है, जैसे खाने पीने में, जैसे आपने जो 4 प्रिंसिपल्स बताए, इसके अलावा भी है कुछ जो और इसको सिंसियर को डेवलप कर सके और लेजीनेस को कम कर सके? माता जी, चैंटिंग विद सिंसियरिटी, जो अब जो हम चैंटिंग करते हैं, श्रवण करें उसको, हर हरि नाम को श्रवण करें, दैट्स द बेस्ट, दैट्स द फर्स्ट थिंग। फिर जो भी हम खा रहे हैं वो भोग लगा के खाएं भगवान को, है ना। हम कई बार ऐसे ऐसे लोगों का कुक्ड खाना खा लेते हैं जिनका चेतना बहुत ही दूषित होती है, लस्टी होते हैं या जो भी होते हैं, जैसे आजकल कितना एवरीवेयर इज लस्ट, और हमने किसी ऐसे कंटामिनेटेड व्यक्ति के हाथ का बना खा लिया तो हमारी चेतना कंटामिनेट हो जाएगी। तो भोग ला के खाना है, चैंटिंग करना है, और ये 4 नियमों का पालन करना है। हाँ, ग्रेजुअली हम देखेंगे we can overcome this thing, you know. Reading Prabhupada's books is very important every day, है ना। So please try, it's a process, it's a gradual process. तो आप जब नहीं थी भक्ति में, जैसे रमा जी को मैंने बताया, और अब भक्ति में चेंज तो है ना, उस समय से तो चेंज है ना, आगे भी और चेंजेस आएंगे। अगर हम चाहते हैं हमारे अंदर एक गुण आया, हमें प्रभुपाद से कृपा याचना करनी चाहिए, प्रभुपाद आप तो गुणों की खान है, मुझे भी गुण दीजिए, है ना। सो सिंसियरली माता जी प्रैक्टिस करना है, सिंसियरिटी तो लानी है, नहीं तो कुछ होगा नहीं, कुछ बनेगा नहीं फिर, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हमने बहुत सारा टाइम लगा दिया, आई थिंक आई जस्ट लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, आई एम सो सॉरी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा प्रिया, जूही, हरे कृष्णा। मना, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा चिरंदन माता जी, थैंक यू एवरीवन, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा, सोनिया जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन, अचला माता जी हरे कृष्णा।